Trouble. Good afternoon, sir. Afternoon, beta. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Hello, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Hello, Nishat. Hello, Sharik. Hello, Itrat. So, Unit 8. There is a photo of a child. Do you see? Yes, sir. Photo of a child. Good afternoon, sir. The child looks happy or sad? Annoyed. Annoyed. He looks happy or annoyed? He looks annoyed. Why does he look annoyed? Perhaps he likes the food, right? Perhaps he's not happy with the food. Such children are called fussy eaters. Fussy eater. Were you a fussy child in your childhood? Were you a fussy eater in your childhood? Were you a fussy eater in your childhood? Hey guys, what happened? The video has frozen. Is it my internet? Let me check. When you were a child, did you like everything or you were a fussy eater? You were a fussy eater. Other people? You are still a fussy eater or you were a fussy eater? You still are. Okay. Other people? Are you a fussy eater? Were you a fussy eater? You were not a fussy eater. My brother was not a fussy. My brother was a fussy eater. I was not. My brother would, I don't like this. I don't like that. It's not tasty. It's not tasty when he was a kid. And my mother said, that's why you don't have a strong body because you don't enjoy your food. And I was like very, carefree. I would eat everything. Give me a second. Good evening, sir. Hello, Rishikesh. Good evening. Now talk about yourselves to each other. Were you a fussy eater or you're not a fussy eater? Tell each other. Ashwini, you're not sitting in the same line with him. Any reason? Is there a problem there? Why don't you move a little bit this way? Yeah. A fussy eater makes a lot of, fuss. Oh, I don't like this. I don't like that. This is not tasty. That's not tasty. And someone who is not a fussy eater enjoys most of the things. So when you were a kid, were you a fussy eater? I was not. But I think maybe I'm a little fussy now, but I wasn't very fussy about my food as a kid. As a kid, I always wanted everything, more. I was called Dalinder. Okay. Hanji, what about you? Are you a fussy eater? Okay, talk to each other a little bit, or maybe
we should start with recognizing the food items in the picture. Let's just start with that. Just give me a second. Look at your book and talk about the picture. Let's match the photos and the names of the food. Letter A, what is it? Apple, sir. Apples. Yeah, 3 apples. Letter B, Biscuits. 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 There are biscuits, right? In letter B. Letter C, Tomatoes. there are tomatoes, right? And D, it's pasta. It's pasta. D is pasta. Yes, it is pasta. Letter E. Onions. Onions. We don't say onions, we say onions, okay? Because it starts with O, so some people read onions, but that's not correct. The right pronunciation is onions. So yes, we have onions here. F. Strawberries. Yes, these are strawberries, right? And G. Chips. Yeah, we have chips here. Chips are made from potatoes. Chips are made from tomatoes. Chips are made from tomatoes. No, chips are not made from tomatoes. Chips are made from potatoes. H. It is bread. H is bread. ब्रेड मतलब रोटी नहीं होता ब्रेड मतलब ब्रेड मतलब ये क्या मतलब ब्रेड मतलब ब्रेड ब्रेड मीन्स रोटी roti is a type of bread we can say, but roti is different, bread is different. They are 2 different recipes. The ingredients are very much the same. You know, you use wheat flour. What do you use? You use wheat flour to make roti. You use wheat flour to make bread as well. But the process is totally different. When you make roti, you have to use a rolling pin to roll the roti on a surface, plain surface. But when you make bread, you don't use the rolling pin. You put it in the oven, the dough, and it becomes, it gets baked and becomes bread. But we make roti on tawa, not in the oven. So roti is a different kind of thing. And English of roti is roti. Roti is an English word as well, no problems. Bread is different. This is, chapati is also accepted in English. If you write ROTI or CHAPATI, chapati, people will understand what you mean. Okay. And those people who know nothing about India, they are ignorant. So we can educate them that you have bread, we have rotis. Okay, we make rotis every day. We don't keep rotis for 2 or 3 days. We make fresh roti every day using the rolling pin. They don't make that. Which do you enjoy better, roti or bread? Which do you like more? Roti, yes. Children love bread as well with milk. Do you like bread with milk? Yes, sir. No?
I like it. With a little extra cream, malai, it tastes amazing. And then we can also make bread malpua. Have you made bread malpua? First, you fry the bread in ghee or refined oil, whatever you can afford. Okay, you fry in it and then put it in the chashni, the sugar syrup. You call it shahi tukra? Yes, yes, of course. I love it. I. What do you have in I? These are bananas, right? Yeah. J. Wine. It is wine. You guys recognize it so well. Huh? You drink wine? Huh? Sometimes on Sundays? No? Okay. K. What is it? K. Apple. What is apple? Apple. First apple is the apple. We put apples. Okay. Apple juice. It's one of my favorite juices. Apple juice is one of my favorite juices. I love apple juice. I love orange juice a lot. Grapes juice as well. I make these things at home. I mean, not apple juice. I don't make it at home, but I make apple, orange juice at home. I also make grape juice at home. It's great. It's amazing. Really tasty. When the fruit is cheap, when it is the right season, you can buy big quantity of these fruit and make juice at home. I remember I drank apple juice at Patna station, I think, railway station, many years ago. And it tasted yummy, so cold. It was like chilled beer. People talk about beer a lot. Okay, chilled beer is amazing, but I don't think it is better than chilled apple juice. Chilled apple juice is the best drink in the world. Next, we have K. After K, we have L. What do you think about L? What is it? Tea. It's tea. I know you guys know different kind of tea. It's tea in tea bags. It's tea in tea bags. Yes. M. These are called M. 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 Check. Look at the list. Look at the list. What do you think M is? Crisps. Crisps. M is crisps. M is crisps. Crisps are made from potatoes. Crisps are made from potatoes. Yes. N. N is yeah. N is ice cream. O. Chocolate. P. Coffee. Coffee beans. These are coffee beans. And Q. Eggs. Do you like them? Do you like eggs? How do you eat eggs? Boiled, omelette, poached, curries? Which is your favorite thing with eggs? Why? Egg roll. Okay. Egg rolls are very popular with children. Have you ever eaten egg rolls, guys? You've never eaten egg rolls. My question was for the hostel students. Have you eaten egg rolls? When was the last time you ate an egg roll? Divya? When was the last time you ate an egg roll? You could say, I never ate any. You've never eaten any. You've never eaten egg rolls. When was the last time? You don't remember. You don't remember. Are you? 4 months ago. 4 months ago you ate an egg roll. That's a long time. Arav? 2 or 3 months ago.
A whole long time. Mhm. Sure. Egg rolls. When did you last eat egg roll? Never. Ishan has never eaten egg rolls. What about you? You have, but long time ago. I think egg rolls are not bad. They're not very bad. I mean, if you use the right quality of oil, why are they bad? Ankit, when did you last eat egg rolls? 2 years ago. Oh, you stopped eating eggs, right? You're a vegetarian now. You don't even eat eggs. Not eggs. Do you eat eggs or not? Sometimes you eat, but not egg rolls. Love eggs. I can eat eggs almost every day. I can eat, right? Of course. My favorite is boiled. They are really tasty with a little bit of chopped garlic, a little bit of chopped onion, yeah, and a few green chili chopped. If you have coriander leaves, amazing, fantastic combination. If you want, you can fry it, boiled eggs, fried a little bit on the pan, not in deep fried, just what do you call it? Pan fried, shallow fried, that way. That's my favorite. What about you, Taiba? How do you like eggs? Boiled, poached? Yes, sir. Boiled egg. They are your favorite too, boiled eggs? Yeah, every day. Oh, Morning. you eat every day. Yes, sir. You're so lucky. You're so lucky. I can't eat eggs every day for two Yeah. reasons. Money is one reason. I can't eat alone. If I eat eggs, I have to bring eggs for everybody, all my family. And now we have hostel children as well. So eggs every day will be expensive. Maybe next year we can have eggs every day. One egg every day for breakfast. Eggs are good for you. Eggs are very, very healthy. They have protein. Eggs have protein. The white part is full of protein. And the yellow part, we call it yolk. What did we call it? Yolk. Spelling. Very good. The yellow part, which is called yolk, is full of fat and protein as well. Which part do you like better, the white part or the yellow part? Really? I like them both. I don't give away my yellow part, the yellow part of the egg. I love that too. Some people say it's full of fat, so I can't eat fat. If you're eating 5 eggs, then you can't eat 5 yellow parts. That's true. It's really bad. 5 yellow parts? No. But 1 or 2 every day you can eat. No big deal. Eggs. But these eggs are brownish, yellowish. The eggs we buy are whitish. People say the white eggs are not very healthy, but that's just a myth. That is just they are also healthy. Yes, the natural brown eggs, we call them desi andana. Yeah, they are more healthy. I agree. They're healthier. They have more micronutrients and all. But these eggs are also very healthy. White eggs are also very healthy. Do you know the rate these days? Anybody here? Huh? 8 rupees a piece. 100 rupees a dozen. I think if you buy the whole carton, then they will be a little cheap, maybe 7 rupees. Maybe. Letter R. What are they? They are carrots. Again, O in the spelling, but not in the sound. Carrots. These are carrots. These are carrots, guys. And yeah. Do you like carrots? Yes, sir. I love carrots too. I eat them raw. Just
You know, carrots became very popular after a movie Sunny Deol did. In that movie, he was a police inspector who always ate carrots. Yeah, and he was very strong. So, you know, a lot of young people copy movie actors and their style. So carrots became very popular after that movie. But I've always enjoyed eating carrots. I love carrots. But I don't eat carrots halwa a lot because carrots halwa is full of fat. It is tasty, but full of fat. I avoid eating fat. I don't want to become pot belly, you know, big belly. I will sit like this. My stomach is in front of me. I say, hello, how are you doing? You know, I don't want. I don't want to talk to my stomach. Hello, big boy. You know, not like that. I like being slim. Okay. So carrots. S. Broccoli. 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 Okay. It's broccoli. It is a step brother of cauliflower. Yeah. Can you hear me now? Can you see me now, guys? Yes, sir. Okay. Next, beta. After the cauliflower, we have potatoes in tea. Potatoes. Do not start with po, start with pa, because O is not always pronounced as O sound. S-O-N. Do you pronounce son? Son. So similarly, it is potato, not potato, okay? Potato. Yeah. Please change your pronunciation. Onions, potato, tomatoes, okay? Not tomatoes, tomatoes. Okay. And you know, potatoes. I think all of us love potatoes when we were kids. The only vegetable we love is potatoes, right? We all love potatoes. I remember my cousins, you know, my chacha's children, they were crazy about potatoes. Every day they would get slaps from my chachi while they were eating because they would finish the potatoes first, dal, bhat, everything is left in the plate. Potatoes are over, okay? And they would start shouting, Mummy, aloo, Mummy, aloo. And my chachi would get annoyed and come and slap them first. Aloo, aloo, aloo. Every day story it was. We ate aloo potatoes every day. Children don't like greens very much. We don't like green vegetables like, you know, children hate bitter gourds, Karela. Children don't like them. Now I love bitter gourd. You still don't like it. I love bitter gourd. चलो आज तुम्हें कुछ बहुत इंटरेस्टिंग पढ़ाऊंगा समझाऊंगा ठीक है समझ बन गई तो बड़ी बड़ी बात नेक्स्ट बेटा यू मिल्क वी W. Ice cream. Oh, you thought N was ice cream, right? N is not ice cream, beta. N is yogurt. N is yogurt. What is yogurt? Yogurt is dahi, beta. Yogurt is basically dahi. Dahi to curds hota hai. No. That's what we learned. But people in England and America, they eat yogurt. They don't eat curds. Let me explain. Dahi is specifically made, right? When you want to change doodh into dahi, you add some dahi.
You add culture. इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं? कल्चर डालते हैं उसमें, जोड़न बोलते हैं ना उसमें, उसको इंग्लिश बोलते हैं कल्चर डालते। अब वो कल्चर में बहुत सी चीजें हो सकती हैं, डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स, केमिकल्स, टू चेंज दूध इनटू दही, योगर्ट. Because India is a hot country, we make dahi at home because the bacteria are active in this high temperature world. But when it is very cold, like in the month of January, we celebrate Dahi Chuda, Til Sakrat, on the 14th of January. Dahi jamana is a big challenge. कई बार मम्मी नहीं जम रहा है, हल्का जम रहा है, क्यों? It's very cold at that time. So in very cold weather and in very hot weather, it is difficult to make dahi because the bacteria are active at moderate temperature. When it is very cold, bacteria become inactive. When it is very hot, the bacteria become inactive. So dahi is easy to make in this kind of weather, when it is 20 degrees, 25 degrees, 30 degrees, 35 degrees, easy. But when it is 5 degrees, minus 10 degrees, minus 15 degrees, dahi is not easy to make. So Canadians, Americans, they normally don't make dahi at home. They buy dahi from supermarket. And these dahi glasses and packs are called yogurt dahi. They add extra flavors, like sometimes strawberry flavor, sometimes apple flavor, sometimes different flavors. Okay. So it is yogurt. What we eat at home in India, that's plain yogurt, no flavors. Okay, plain yogurt, no added flavors. Curds क्या होता है बेटा? तो technically, when milk becomes hard, the thick part separates from the water automatically, because we forgot to warm it up. Okay, then sometimes in Hindi भी से दही फट जाता है, दूध फट जाता है. So that is curds बेटा. जो थिक पार्ट है ना दूध का, उसको कर्ड्स बोलते हैं. चाहे आप लेमन डाल के कर लो, चाहे विनेगर डाल के कर लो. ओके, हेलो, हाँ सर, नमस्ते सर, कैसे हैं? जी ठीक है सर, जी बढ़िया सर. और बताएं जी. जी उसके बारे में कुछ तो जानकारी नहीं है जी. अच्छा 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 अच्छा. हम्म हम्म. जी आ, जी 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 जी. हम आपसे बात करते हैं इस बारे में, अभी क्लास में है, और शाम में जी जी 8 बजे हम आपको कॉल करते हैं जी. हाँ ठीक, ओके सर. तो what was I saying, guys? Curds, the thick part of the milk, when it separates from the water, then the thick part is called curds. Okay, so when you are making paneer, you put the lemon into the milk, the thick part separates, that thick part can be called curds. Understand? Yeah, and the thin part is called whey. The thin part is called, the water is called whey, W-H-E-Y. Okay. So basically that's the reality. But हमारे यहाँ set हो गया है, सब लोग क्या बोलते हैं? Curds, dahi. But that's not the truth. Technically, dahi is not curds. Okay. Next. So we have ice cream here. Okay. W is ice cream, and V is cheese, and X is peas. Yeah. So beta, verbs have 5 forms, right? V1, V2, V3, V4, V5. Nouns have 2 forms, only 2 forms. Singular. Okay. Take a look at list A. Take a look at list B. Which list has plural nouns?
List B has, list A doesn't have plural nouns. You know why? Because the nouns in list A are uncountable. The nouns in list A are all uncountable. Uncountable? Yes. You cannot say 1, 2 with these nouns. You cannot say 1 cheese, 2 cheeses. You cannot say 1 pasta, 2 pasta. Yes, sir, we can say 1 ice cream, 2 ice creams. I will come to that a bit later, okay? I'll come to that. But first of all, understand. Just Just give me a second. Come on, continue. Continue. Yeah. Create music if you can, if you are talented enough. Yep. My class students are really fun. You know, they can make fun out of nothing. They are popping their fingers, you know. What is this called? You are popping your fingers. Say, we are popping our fingers. Okay. When you do this, in Hindi, you say, ungli phutka rahe hain, phod rahe hain, jo bhi bol rahe. In English, we call them, we are popping our fingers. So they are popping their fingers around the class. You know, one person pops, then another person pops, and then one person pops. They're trying to, you know, have some fun out of it. Yeah. Try to be musical if you can with this. So what were we discussing, guys? Yeah. Some nouns are uncountable, right? So clearly, take a look. You can say now 1 banana, 2 bananas. You can say 1 apple, 2 apples. You Apple. can say 1 strawberry, 2 strawberries. So they are countable. And that's why they can be both singular, which means 1, and plural, which means more than 1. Okay, singular means 1, plural means more than 1. So bananas can be 1 banana, singular, 2 bananas, plural. But how will you say yogurt, 1 yogurt and 2 yogurts? You know, yogurt is yogurt. It's a cream thing. How can you count it? That's why it is uncountable. So some nouns are countable and some nouns are uncountable. Think about milk. How will you say it is 1 milk, 2 milks, 3 milks? How will you say that? You can't count milk. Isn't it common sense? Common sense? Now, tell me. Wine, cheese. You have a big piece of cheese.
because you had a lot of milk and you made big piece of cheese, and you can cut slices of cheese, but it is all cheese only, not cheeses. Clear? So there are uncountable nouns and there are countable nouns, right? Sometimes some nouns are both countable and uncountable. We think of them differently. Let's take an example. Ice cream. So suppose there is a big bucket and there is ice cream in it. Ice cream is ice cream, uncountable. But think of another situation. There are lots of cups. Now here you can say 2 ice creams. But when you say 2 ice creams, basically you mean to say 2 cups of ice cream, 2 cones of ice cream, right? So first of all, you have to understand, basically ice cream is uncountable or countable? Basically Uncountable. it's uncountable. But in one situation, when we go to the shop, 3 friends, and we say 3 ice creams, please, वो confuse नहीं होता है. हाँ, पता है उसको कि 3 ice creams, 3 packets, 3 cups, 3 cones, right, guys? So Yeah. 3 ice cream देते वहां पे. But when you are at a wedding, और वो ढेर सारा ऐसे लेके बैठे हैं, ऐसे निकाल के, अब वहां 3 आइसक्रीम तो ही बोलते हैं, और बोल भी देते हैं अगर बाय द वे, तो वो समझ आते हैं आइसक्रीम फॉर 3 पीपल. अगर आपने जाके बोला 3 आइसक्रीम्स प्लीज, तो वो समझ जाते हैं, वो पता है कि आइसक्रीम आइसक्रीम ही है. आप जब कह रहे हो 3 आइसक्रीम्स वहां इन दैट की सिचुएशन, then they clearly understand you mean to say ice cream for 3 people. So they will give you 3 different servings, 3 different cups or bowls or plates, whatever they're using, in 3 places. हो गया 3 ice creams. But technically, ice cream is uncountable. ये तो पता है. Similarly, tea, coffee, what are they? Uncountable, right? But sometimes you go to the shop and say, 2 चाय लाइए. तो 2 चाय मतलब क्या? Right? Chai for 2 people. Right? अब वो ग्लास में 2 ग्लास देते हो, 2 कप देते हो, whatever. Chai for 2 people, 2 चाय. तो in this world we have habits. तो उन habits को भी incorporate करना पड़ेगा. थोड़ी बोलने चलेंगे भैया तू गलत इंग्लिश बोल रहा है, uncountable है, चाय नहीं बोलना चाहिए, 2 चाय नहीं, ऐसा नहीं है. You have to understand why they use it and what it means when they use it. लेकिन जो यूज नहीं करते वो थोड़ी जाकर अभी बोले 2 दूध देना, कभी बोले. आप ऐसा कर सकते, कहाँ कर सकते, इमेजिन करके बताए. Suppose there is a shop which sells milk glasses. भाई आइए गरम गरम दूध पी लीजिए, ठीक है, मलाई वलाई डाल के, काजू पर से डाल के वो गरम गरम दूध पिलाते हैं, ठीक है. आप जाए बोले 2 दूध लग, 2 दूध पिलाओ, तो वो समझ जाएगा. आप हिंदी में बोल दे सकते हैं 2 दूध, इंग्लिश में आप वहां बोल सकते हैं खड़े के उस जगह पे 2 मिल्क प्लीज, तो वो क्या समझेगा? मिल्क फॉर 2 पीपल, 2 ग्लासेस, 2 सर्विंग्स, जो भी है. आप मुझे बताओ, एप्पल जूस इज काउंटेबल और अनकाउंटेबल? Uncountable. Right? Clearly. But you go to a juice counter, juice shop, and you say, दो एप्पल जूस दीजिएगा. तो 2 एप्पल जूस दीजिएगा मतलब 2 कैसे गिनेगा वो? Basically, he will give you 2 servings of these things. Am I right? तो practical होके सोचेंगे, we will understand that originally juice is uncountable, लेकिन in a certain situation we use it as countable noun only in limited context. हर जगह नहीं, limited context. What do you think about mutton, chicken, fish? क्या सोचते हो? डिपेंड करता है क्या मीन करते हो. मटन, मीट ऑफ गोट्स, और हाँ गोट का ही मीट को मटन बोलते हैं बेसिकली. तो गोट्स मीट मटन. अब आप क्या ही उसको काउंट करोगे? Yes. इतना बड़ा लेग पीस ले लिए तो भी मटन है, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर ले वो भी मटन है. तो मटन इज अ मटीरियल ना बेटा, मटन इज अ. तो जो चीजें मटीरियल है बेटा वो उसको काउंट क्या करना, समझिएगा. Why is milk uncountable बेटा? Milk is a material. तो मटीरियल है तो मिल्क तो मिल्क ही रहना है, चाहे ढेर सारा मिल्क रहे, मिल्क ही रहना है. तो मटीरियल है, इसीलिए वो क्या है बेटा? अनकाउंटेबल.
तो जो नाउन्स मटेरियल रेफर करते हैं, देयर इज अ नाउन कॉल्ड मटेरियल नाउन, यू नो दैट इन योर चाइल्डहुड यू माइट हैव स्टडीड मटेरियल नाउन्स। बचपन की पढ़ाई इसलिए मायने रखती है। इंग्लिश भले ही ना बोलना सीखें, लेकिन जिन्होंने अच्छी पढ़ाई करी होती है दे लर्न फर्स्ट इन दिस काइंड ऑफ कोर्स, ओके। तो मटेरियल नाउन इन हिंदी वी कॉल इट द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा बड़ा सिमिलर है हिंदी ग्रामर इंग्लिश ग्रामर। अगर कोई खाली ढंग का स्टूडेंट रहना चाहिए बचपन से, उसको ये सब में कोई परेशानी नहीं होगी। हिंदी इंग्लिश एक जैसे है। द्रव्यवाचक संज्ञा मटेरियल नाउन। बात करते हैं सोना, गोल्ड। सोना अपने आप में अनूठा चीज है ना, यूनिक है ना। सोना चांदी नहीं है, सोना पीतल नहीं है, सोना सोना है। अभी इतना सारा सोना चाहिए, इतना सारा सोना सोना है, तो गोल्ड इज अनकाउंटेबल क्लियरली। वो Material. गोल्ड कैसे होएगा? हाँ, झुमका हो सकता है 2 जोड़ा, 3, 5, चेन हो सकता है 5, 6। दीज आर कॉमन नाउन, राइट बेटा? झुमका इज कॉमन नाउन, चेन इज अ कॉमन नाउन, अंगूठी इज अ कॉमन नाउन। और ये कौन से पदार्थ से बना है, कौन से मटेरियल से बना है बेटा? गोल्ड। गोल्ड इज अनकाउंटेबल नाउन। मटेरियल तो एक ही है, गोल्ड। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, कॉमन नाउन्स कैन बी सिंगुलर प्लूरल बेटा, but uncountable nouns are, sorry, material nouns are always। अब यहाँ पर आप लेके आते हैं अनियन, काउंटेबल है, ठीक है, 1 अनियन, 2 अनियन, 3 अनियन काउंट कर सकते हैं। लेकिन बेटा अनियन एक मटेरियल भी तो है बेटा। अनियन क्या है? मटेरियल कैसे हुआ? मटेरियल। अगर आपने कुछ खाना सामने आपके परसा गया है, लेट से सब्जी है या कढ़ी है या खिचड़ी है, ओके, somebody served you खिचड़ी, आप उसमें पूछ रहे हैं इसमें प्याज है क्या? तो प्याज गोल गोल उम्मीद कर रहे हो, वो तो दिख जाएगा। आप पूछ रहे हो उसमें प्याज डाले हैं, तो कौन सा चीज का बात कर रहे हैं आप? प्याज द मटेरियल और प्याज द सब्जी। प्लीज अंडरस्टैंड देयर आर 2 थिंग्स। प्याज बोलने से हमारे दिमाग में 2 बातें आनी चाहिए, कॉमन नाउन और मटेरियल नाउन। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। लेज नहीं खाना चाहिए, इसमें प्याज पड़ा हुआ है, तो गोल गोल प्याज डाल दिया उसमें, No. नहीं ना। तो इसीलिए जब वो गोल गोल की बात हो रही है तो वो है काउंटेबल अनियंस। इन दिस पिक्चर हाउ मेनी अनियंस डू यू सी बेटा? यू सी 2। यहाँ काउंटेबल है बेटा, ठीक है। आप समोसा खा रहे हो और सामने वाले बोले थोड़ा प्याज ले आइए, तो आप बोले ब्रिंग सम अनियंस, बोलिएगा। वो अनियंस ला के देगा आपको, गोल गोल 2-3 ठो देगा बेटा। तो प्रैक्टिकल माइंड क्या ला के देगा? रिंग्स ऑफ अनियन, कटा हुआ चॉप्ड अनियन, स्लाइसेस, ऐसे कुछ ला के देगा ना। उसी की उम्मीद कर रहे हो ना, तो आप क्या बोलोगे? आपको अनियन पदार्थ चाहिए, मटेरियल चाहिए, या गोल गोल अनियन चाहिए? कॉमन नाउन Onion. गोल गोल मटेरियल। अनियन 2-3 ठो, नहीं ना। तो आप क्या बोलेंगे? ब्रिंग सम अनियन, ब्रिंग सम अनियन एंड यू आर फाइन। अभी पढ़े हम लोग अनियन क्या बेटा? काउंटेबल नाउन्स। और वहां बोल रहे सम अनियन, अनकाउंटेबल, क्योंकि सम के साथ अगर काउंटेबल नाउन बोलना है तो प्लूरल बोलेंगे बेटा। सम चेयर्स, चेयर कभी भी अनकाउंटेबल नहीं हो पाएगा बेटा, चेयर मटेरियल नहीं होता। वो चेयर बना होता है प्लास्टिक से, चेयर बना होता है वुड से, चेयर बना होता है मेटल से, लेकिन चेयर एक कॉमन नाउन है और वो 1, 2, 3 ही होता है। तो चेयर इज ऑलवेज Quantity. काउंटेबल नाउन ना। तो काउंटेबल अनकाउंटेबल कोई आप पूछना नहीं आपको किसी से, आप खुद डिसाइड करेंगे अपना लॉजिक लगा के, ओके। ये काउंटेबल है, अगर इसको 1, 2, 3 करना कर सकते हैं। कभी कभी किसी लैंग्वेज में जो चीज को 1, 2, 3 कर सकते हैं, दूसरा लैंग्वेज उसको वैसे नहीं देखता है। लेकिन ये सर ज्यादातर ऐसी बातें आपको मतलब आसानी से समझ में आती है। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप चेयर को कभी अनकाउंटेबल मानोगे? चेयर कुर्सी को अनकाउंटेबल मानोगे कभी भी? किसी भी कॉन्टेक्स्ट में अनकाउंटेबल है वो? नहीं। एक चेयर होगी, 2 चेयर होंगी, 3 होंगी। हिंदी में 1 कुर्सी, 2 कुर्सियां, 3 कुर्सियां, राइट। जरा गौर करना बेटा, हिंदी में आप बोलेंगे 1 टमाटर, 2, बोल के दिखाइए, 2 टमाटर, 3, यानी चेंज नहीं हुआ।
टमाटर प्लूरल नहीं हुआ ना। इंग्लिश में 1 टमेटो, 2 tomatoes, टमाटो 3 tomatoes। तो हिंदी पे डिपेंड नहीं करना है। आप और देखिए ना, तुम 2 आम खाया था, हम 5 आम खाए, सही है ना, कोई परेशानी नहीं, कोई गलत हिंदी नहीं है इसमें, ग्रामेटिकली कोई मिस्टेक नहीं। आप बोलेंगे क्या तुम 2 आमे खाए थे, हम 5 आमों खाए थे, ऐसा कुछ करेंगे क्या? नहीं ना, आम ही बोलेंगे ना। लेकिन इंग्लिश में you ate 2 mangoes, I ate, वन got it, got it। हिंदी से मिलाना नहीं है, आइडिया समझना है इंग्लिश में, आइडिया समझना है हिंदी में। हिंदी में नहीं है आम का प्लूरल, और उसकी वजह बताता हूँ। खाली आम और टमाटर नहीं। अच्छा सुनिए, आम का प्लूरल कुछ जगहों पे आमों के भंडे, आमों के हाँ बोल सकते हैं, ठीक है। हालांकि आम के, मैं हिंदी का टीचर नहीं हूँ तो ग्रामेटिकल में नहीं हो पाऊंगा ये सही है कि नहीं। ओके, आई विल इग्नोर इट, आई हैव टू गो टू एक्सपर्ट्स टू डिस्कस कि आम बोल सकते हैं कि नहीं, ठीक है। लड़की, लड़की का प्लूरल लड़कियों भी होता है, लड़कियां भी होता है, लड़कियों भी होता है, दो प्लूरल होते हैं। इंग्लिश में तो ऐसा नहीं होता, गर्ल का प्लूरल, बात खत्म। तो प्लीज कंपेयर द टू लैंग्वेजेस, डोंट बी ए फूल टू जस्ट पैरट एवरीथिंग, रट्टा मार लो, नहीं, कंपेयर। Hindi is a different language, English is a different language. There can be some similarities, but there can be some differences between the two languages. Got it? ये जो लोग हिंदी की वजह से इंग्लिश बताते हैं वो बेवकूफ होते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि वो अपने बच्चे का कितना नुकसान करे। बच्चे सोचेंगे जैसे हिंदी वैसे नहीं। There can be some similarities, agree, there are two different languages, there can be some similarities, but there are differences too। तो हम बात करते हैं केला, ठीक है। तो आप चाहें तो केला को प्लूरल नाम समझे, काउंटेबल नाम समझे। तो केला मटेरियल भी तो है ना बेटा, हर खाने की चीज मटेरियल है कि नहीं। अमरूद भी एक मटेरियल है ना, जो कि डिफरेंट है बाकी सब मटेरियल से। केला भी मटेरियल, जब मटेरियल के तौर पर उसका सोच रहे हैं तो वो अनकाउंटेबल हो जाएगा कि नहीं। तो जब आप उसको फुल सेंस में समझेंगे, जिसमें उसको काउंट किया जा सकता है 1 2, उसका जो शेप है उसके वजह से, राइट। आप मीट को क्यों नहीं काउंटेबल मानते हैं? समझिए, मटेरियल नाउन है, मीट का कोई फिक्स शेप नहीं है ना कि ये मीट होएगा, राइट, कि ये एक होगा। तो बच्चे, एक मजाक वाली बात, बच्चों के साथ समझने वाली बात, एक बच्चे को एक बिस्किट लेके जाओ, बोलो एक बिस्किट, फिर 2 टुकड़ा करके बोलो 2 बिस्किट, थप्पड़ मार देगा बच्चा, बोला बेवकूफ समझा, आधा आधा करके बोला 2 बिस्किट। लेकिन आप ये ट्राई कर सकते बच्चे के साथ मीट वाला, एक मीट दिए आपको, उसका 2 टुकड़ा करके दीजिए, थोड़ी देर बाद वो नहीं मानेगा कि वो एक था, वो कहेगा 2 है, ठीक है, क्योंकि उसका कोई फिक्स शेप, समूचा का आइडिया नहीं होता उसमें। जहां समूचा का आइडिया होगा वही एक और समूचा तो 2 आके ना, एक और आधा समूचा तो 1.5, ऐसे हम लोग गिनते हैं ना। तो काउंटेबल मतलब गिन सकते हैं, उनको गिना जा सकता है। तो 1.5 भी हो सकता है काउंटेबल में। देखो आर बोलते हैं, 1 आर, 2 आवर्स गिनते हैं ना बेटा, 1.5 आवर्स भी होता है, क्योंकि 1 आवर और आधा आवर, ठीक है। तो 1.5 आवर्स, ठीक है मेरे बच्चों। तो काउंटेबल अनकाउंटेबल, आई थिंक आजकल आप कंफ्यूज ना हो। हाँ, इग्नोरेंस रह सकता है कुछ जगहों किसी वर्ड के बारे में। एक बताता हूँ, पढ़ा, एक खाने पीने की चीज से हटके, एक वर्ड है इंग्लिश में इंफॉर्मेशन, ये अनकाउंटेबल ना। हाँ, हिंदी में सूचना काउंटेबल है। 2 इंपॉर्टेंट सूचनाएं हमारे पास, ठीक है, 2 महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं हमारे पास। सूचनाएं एकदम सही, कोई दिक्कत नहीं, हिंदी में सूचनाएं बोल सकते। सूचनाओं के भंडार को इंटरनेट का, चलिए ऐसे ही बोलिए। तो सूचनाएं, सूचनाओं प्लूरल कर रहे हैं ना। इंफॉर्मेशंस नहीं हो सकता इंग्लिश में कभी। अब इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं करेंगे, आप मान लेंगे अभी फिलहाल। क्यों मान लीजिए? क्योंकि ये नई लैंग्वेज है और ऐसे वर्ड्स आपको सीखने पड़ेंगे धीरे धीरे जो एकदम अजीब हैं। क्यों है? अच्छा, हिंदी में खबर,
एक बुरी खबर आई। क्या बोले? एक बुरी खबर आई, यानी काउंट किया ना, 2 बुरी खबरें हैं हमारी। टू बैड न्यूज नहीं बोलेंगे इंग्लिश, सम बैड न्यूज। न्यूज इज अनकाउंटेबल। तो ये कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिसके बारे में अगर आप एडवांस लेवल पे नहीं पहुंचे हैं, इंग्लिश में लेवल आपका ऊपर नहीं उठा है, तो आप कंफ्यूज ही रहेंगे, आपको नहीं पता रहेगा सच सही क्या है। इसलिए कोई भी बच्चा या लर्नर जिस लेवल पे होता है, उस लेवल पे उसको लगता है हम सब जान रहे हैं, मतलब सब जान रहे हैं मतलब हम सही बोल रहे हैं। जब वो और जानता है तब उसको पता चलता है वो बोल रहा था, सोच रहा था गलत। तो जब तक आप बड़े नहीं होंगे कैसे जानेंगे आप बच्चे थे? इनमें से किसी को लगता है बच्चे हैं ये, हम लोग ठोक पीट के बोलते रहते हैं बच्चे हैं बच्चे हैं, बट इनके दिमाग में लगता है हम तो सब समझते हैं, हर बात तो सही है हमारे दिमाग में। बट व्हेन दे ग्रो अप देन दे रियलाइज दैट दे वर किड्स, क्योंकि उसके लिए पहले वो बड़ा हुए तब एहसास हुआ कि क्या था, बचपना था। व्हेन अ चाइल्ड, 5-year-old child, 4-year-old child says to his mother, मम्मी हम बड़े होंगे तो तुमसे शादी करेंगे, वो उस समय बिल्कुल नहीं रियलाइज करता है कि वो जो कह रहा है वो फनी है। वो बस सिंसियर होके बोलता है, हंस के नहीं बोलता है, जरा भी हंसी मजाक में नहीं बोलता, वो एकदम सिंसियर होके बोलता है, मम्मी हम बड़े होंगे ना तो आपसे शादी करेंगे, ठीक है। बहुत अच्छे से बोलता है, या अपनी किसी बड़ी दीदी को या किसी आंटी को बहुत आसानी से बोलता है एक 4 साल का बच्चा। बिकॉज एट दैट एज वो उसकी समझ में जितना है उसको सही लग रहा है वो सब। बड़ा होगा महसूस होगा कि वो फनी है। उस समय उसको कितना भी बोलोगा ऐसे करके देखेगा तुमको, तुम हंसोगे तो क्या बोल दिया ऐसा, क्या आप हंस रहे हैं? ही कांट अप्रिशिएट इट, राइट। तो वैसी लैंग्वेज में आप गलत हैं, इस बात का एहसास आपको तब होगा जब आप ग्रो करेंगे। मैं समझा रहा हूं क्या? उस बच्चे को एहसास है कि उसने फनी बात बोली है जब वो बोला है? नहीं। वो कब महसूस करता है? जब वो उस उम्र से आगे चला जाता है, पलट के देखता है, याद करता है कि हम ऐसा बोले थे, या वीडियोस की होती है कि उसमें देखता है अपने आप को ऐसा बोलते हुए और एम्बैरेस्ड फील करता है कि यार क्या क्या है, राइट, बिकॉज अब वो बड़ा हो गया है। तो सिमिलरली जब लैंग्वेज में आपकी समझ बड़ी हो जाएगी तो आप अपनी पुरानी कॉपी देखेंगे, आप अपनी पुरानी लिखे हुए को देखेंगे और तब कहेंगे ओ माय गॉड हम ऐसा लिखते थे। लेकिन जब आप अभी जिस उम्र में जो लिख रहे हैं आपको सही लग रहा है कि ना, तो कभी झगड़ा नहीं करते आप लोग। आप लोग टीचर के प्रेशर में आपको बोलते गलत है, अच्छा ठीक है मैं गलत। आपको एहसास अभी नहीं होता। एहसास सिर्फ टेक्निकल गलतियों का हो सकता है। टेक्निकल गलतियां समझते हैं? जैसे आई के साथ इज लगाएंगे तो आपको गलत लगेगा क्योंकि आपको बताया गया है कि आई के साथ एम लगाना है, राइट? ओके। तो ये टेक्निकल गलतियां हैं, इनको आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, हाँ हाँ सर ने बताया है। लेकिन जब आप बड़े होंगे ना तो अपनी भाषा को देखेंगे कि हम कैसा लिखते थे। कब बड़े होंगे मतलब क्या, बेहतर हो जाएंगे इंग्लिश में तब। चाहे आप 75 साल के हो जाए इंग्लिश वैसी रह जाएगी, आपको कुछ अजीब नहीं लगेगा। तो फ्रस्ट्रेशन कब आएगा? जब आप बहुत बेहतर इंग्लिश जानते हैं तब, या जब खराब इंग्लिश जानते हैं तो? एक्चुअली जब आप खराब इंग्लिश जानते हैं तो आप तो कॉन्फिडेंस ही है भैया सब सही जा रहा है। जब आप बेहतर जानते हैं तो आपको खराब खराब समझ आ जाता है कि खराब है। कई बार मैंने गौर की, पहले जब मैं यंग था तो मुझे ये बात समझ नहीं आती थी क्यों कुछ टीचर्स बच्चों के साथ चिड़चिड़े हो जाते हैं। क्योंकि उनकी समझ इतनी होती है ना कि उनको लगता है ये इतना लेकिन वहां पर भी एक एक्टिव पॉइंट है कि हम कितने भी हम बेहतर हो जाए हमारे बच्चे तो सीख के ही पहुंचेंगे ना। प्रॉब्लम हमें कब होती है? जब कोई एरोगेंट स्टूडेंट आता है जिसको पता ही नहीं कि वो गलत है, वही बच्चे की तरह, और पूरा कॉन्फिडेंस हम तो सही है। अब उसको कैसे आप एहसास करें? वेट करोगे उसके बड़े होने का, वो बड़ा होना चाहता नहीं है। कहता हम तो जानते ऑलरेडी सब कुछ, हम ये भी जानते हैं, ये भी जानते हैं, ये भी जानते हैं, इसमें ऐसे होता है इसमें वैसे होता है। आई हैव टॉट सम सच एरोगेंट स्टूडेंट्स एंड दे वर वेरी वेरी अनोइंग आई वुड से। One such child was a son of a teacher of Biharshri. In Biharshri, there is a teacher. I will not mention his name. I don't want to embarrass him. He personally called me, much older than me, much, much older. He called me maybe about 10 years ago. And sir, thoda sa dekh lijiyega na. He himself is a teacher of English Bible. Called me and said, but dekh lijiyega. And his son was such an arrogant boy. He was 18, 19 years of age. He was so arrogant, it was very difficult to teach. Children grow, but children, if you want to learn, you have to be humble first. Yes. You have to be humble. Humble people learn, right?
Arrogant people don't learn. So, countable, uncountable nouns. Have you understood? Uncountable idea है कि भाई काउंट नहीं हो सकता, 1 2 नहीं कर सकते. आप बोले पास्ता अनकाउंटेबल. यस बेटा, पास्ता इज अ मटीरियल. ठीक है, पास्ता इज अ मटीरियल. इंग्लिश में फिर कुछ एक्सेप्ट करना पड़ेगा. अलग अलग लैंग्वेजेस में ऐसे चलता है, जैसे भी थोड़ी देर पहले बताया ना, इंफॉर्मेशन, न्यूज. तो पास्ता इज अनकाउंटेबल. पास्ता इज अनकाउंटेबल. ब्रेड इज अनकाउंटेबल. सब ब्रेड तो काउंट कर सकते हैं, 1 2 नहीं बेटा, ब्रेड नहीं, आप उसके स्लाइसेस काउंट. यू नॉट काउंटिंग ब्रेड, बिकॉज ब्रेड में काउंट होने की कोई चीज नहीं है. जिसका एक होने, समूचा होने का कोई आइडिया ही नहीं है. बोले होता है सर, जो पूरा निकला समूचा, क्या वही समूचा हो सकता था अगर आप उसको 2 टुकड़ा करके ही डालते पहले ही अवन में? तो सोचिए, ब्रेड जैसे बनाते हैं, अवन में डालते हैं, गोला बना लिया, पुट इट इन दी अवन. तो आपने अवन में डालने से पहले 2 टुकड़े कर लिए, अलग अलग डाल दिया अवन में, तब वो 2 ब्रेड हो गया आपके हिसाब से. तो बताता हूँ, वो लोफ कहलाता है. क्या कहलाता है बेटा? LOAF, लोफ. आपने 2 लोव्स बना लिए, लेकिन ब्रेड नहीं. अब लोफ मतलब कोई जरूरी नहीं ब्रेड का ही हो, आप मीट का भी लोफ ले सकते हैं. एक बड़ा सा टुकड़ा है मीट का, उसको लोफ ऑफ मीट कहते हैं. अगर 2 टुकड़े हैं ऐसे ऐसे बड़े बड़े, 2 लोव्स ऑफ मीट. लोफ इज जस्ट अ टुकड़ा. ओके, जस्ट लाइक पीस होता है ना बेटा, पीस इज अ स्मॉल साइज थिंग, लोफ इज अ बिग साइज थिंग. जो लोफ होता है वो नॉर्मली सिलेंड्रिकल बिग शेप होता है, उसको लोफ कहते हैं. छोटे साइजेस को क्या कहते हैं बेटा? पीस. पीस. लोफ क्या होता है बेटा? बड़ा. मैं आपको भेजता हूं फोटो. लोफ, लोफ. हाँ. Copy image and put it in the group. So ऐसे ही आप मीट का भी लोफ होता है बेटा, लोफ ऑफ मीट, लोफ ऑफ ब्रेड. यू आर चेकिंग आउट द फोटो इन द ग्रुप. तो वो लोफ है, उसी लोफ को भी कट इनटू स्लाइसेस. तो ब्रेड इज अनकाउंटेबल. तो धीरे धीरे एक्सेप्ट करते चलिएगा. और याद रखिए, क्यों जानना जरूरी है बेटा? व्हाई इज इट नेसेसरी टू नो which nouns are countable, which are uncountable? If you don't know them, then there are certain rules that you have to stick to. For example, आप देखो बेटा, come to this now, the point here, language point, very important language point. Take a look at these 4 sentences in exercise 3. At the bottom of the same page, on the same page, at the bottom, there is exercise 3. Yeah, complete the sentences with is or are. Complete the sentences with is or are. There. Brilliant. Quickly. Number 1, beta. Broccoli is good for you. Next, beta. Tomatoes are good for you. 3, beta. Apple juice is delicious. Apples are delicious. अब यहाँ पॉइंट क्या है? आपको हिंदी में बोलना है टमाटर आपके लिए बहुत फायदेमंद है. इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? क्यों? क्यों टमाटोज क्यों बोल रहे हैं आप? आपको बोलना है दूध आपके लिए बहुत अच्छा है. कैसे बोलेंगे? मिल्क इज गुड फॉर यू. मिल्क इज. और यही मिल्क की जगह हम टमाटर बोलना चाहते तो क्यों? अब यहाँ पर रूल, मिल्क इज अनकाउंटेबल ना, तो मिल्क इज गुड फॉर यू. लेकिन टमाटर, टमाटो इंग्लिश में काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल? मेनली, मेनली काउंटेबल है ना. आप बात कर रहे हैं राइट, तो आप क्या बोलेंगे?
टोमेटोज आर ब्यूटीफुल। अब आपको बोलना है लड़का लोग बुरा होता है, तो कैसे बोलेंगे? बॉयज आर बैड। क्यों? लड़का काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल? लड़कियां ना एहसान फरामोश होती है, कैसे बोलेंगे? गर्ल्स आर अनग्रेटफुल। अनग्रेटफुल, एहसान फरामोश। हेल्प करोगे ना, नहीं मानेंगे हेल्प की। मैं कुछ ही कहते हूँ मेरे लिए ऐसा, अनग्रेटफुल। अच्छा, जरूरी नहीं है ये, बस स्टेटमेंट, आप अग्री डिसएग्री करें कोई दिक्कत नहीं, नो इश्यूज। ओके, तो मैंने भी कहा बॉयज आर बैड, लड़के बुरे होते हैं क्या? अग्री करेंगे आप इस बात से? कुछ लड़के बुरे होते हैं, देयर आर गुड बॉयज एज वेल, राइट? ठीक है, तो वैसे ही, तो मैंने पॉइंट ये रखा है कि ना, अब किसके बारे में बात करें, वो काउंटेबल है कि? हाँ, अगर आपको बोलना है कि संतरा आंख के लिए बहुत अच्छा, इंग्लिश में बोलना है, कैसे बोलो? ऑरेंजेस आर गुड फॉर योर आईज। क्यों? ऑरेंजेस काउंटेबल ना, तो आप बोलेंगे ऑरेंजेस आर गुड फॉर योर आईज। और अगर आप बोलना चाहते हैं कि कॉफी आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी चीज, कॉफी इज गुड फॉर यू, क्योंकि कॉफी इज अनकाउंट, तो आप जनरल का, ये सब जनरल कमेंट्स बोल रहे हैं ना, जनरल कमेंट्स बोलते हैं, मतलब कि ऐसी बातें जो बोली जा रही हैं, ऐसे जनरल कमेंट्स इन जनरल है ये। जैसे मैंने बोल दिया लड़के बदमाश होते हैं, राइट, ये एक स्टेटमेंट इन जनरल बोल दिया मैंने, इन जनरल। दूध सफेद होता है, कैसे बोलेंगे? मिल्क इज वाइट बोलेंगे ना बेटा, लेकिन यही बात बोलना टमाटर लाल होता है, तो आप कैसे बोलेंगे? टमेटोज आर रेड। ऐसे बातचीत का यही तरीका है, इसलिए इट्स इंपॉर्टेंट टू नो विच नाउन्स आर काउंटेबल, विच आर अनकाउंटेबल। जो भी इस क्लास में नहीं बैठे उनसे जाके दोनों सेंटेंस दे दीजिए, उनको हिंदी में लिख के दे दीजिए, दूध सफेद होता है और नीचे टमाटर लाल होता है, और उनको कहीं ट्रांसलेट करने के लिए वो एक जैसा करेंगे, लिखेंगे मिल्क इज वाइट, टमाटो इज रेड। क्यों लिखेंगे ऐसा? क्योंकि उनको वही दिख रहा है, उनके पास इंग्लिश रूल्स नहीं है, इंग्लिश ग्रामर का रूल दिमाग में नहीं है कि टमाटो काउंटेबल नाउन है, इसलिए बोलना पड़ेगा क्या? टमेटोज आर रेड, मिल्क इज वाइट। अब यही बात बोलना है, अमरूद हरा होता है, कैसे बोलेंगे? राइट, राइट। तरबूज बाहर से हरा होता है, अंदर से लाल होता है। वाटरमेलन्स काउंटेबल है ना? वाटरमेलन्स आर ग्रीन ऑन द आउटसाइड एंड रेड ऑन द इनसाइड। लेट्स से इट अगेन बेटा, watermelons are green on the outside and they are red on the inside. Any problems? बोलिए बेटा, नारियल बाहर से सख्त और अंदर से मुलायम होता है। कोकोनट्स आर हार्ड on the outside and soft on the inside. अब मेरे कुछ बच्चों के लिए वो ऑन द आउटसाइड ऑन द इनसाइड इज अ वेरी इजी फ्रेज, उनके दिमाग में 4 बार पढ़ा ना, कान पे पढ़ा ना, उनके दिमाग में चला गया, ये अभी बताएगा, बोल के बताएगा। हाँ बेटा, क्या था बाहर से, क्या कैसे इंग्लिश को किया हम लोगों ने? बाहर से जो हम लोग बोल रहे थे इंग्लिश में, कौन से 3 वर्ड्स यूज किए थे? देखा, समझ में आया? कुछ नहीं, मैं इंग्लिश नहीं चेक कर रहा, बस अभी बोला ना हम लोगों ने बाहर से, तो 3 वर्ड्स यूज किए थे। कॉमन वर्ड्स थे क्या अनकॉमन वर्ड्स थे? कॉमन वर्ड्स सुनाई, इनको भी पढ़ा, ये रिपीट करके दिखाएंगे, रिपीट करेंगे। बाहर से के लिए कौन सा फ्रेज बोलो, ये कर देगा, तुम भी कर दोगे, करो तो। थोड़ा सा फोकस चला गया उसका, इसलिए वो ऑन द आउटसाइड बोल रहा, हम लोग क्या बोले थे? और तुम लोग सब का फोकस चला गया, ऑन द आउटसाइड, द आउटसाइड बोला था, द आउटसाइड नहीं बोला, तो ये इसलिए नहीं फोकस कर पा रहे हो क्योंकि तुमको वहां देखने लायक कुछ है ही नहीं लग रहा। भाई तुमको लगता है कि जान ही रहे हैं, तो फिर क्या ध्यान देना? जब पूरा फोकस होता है ना, तब ध्यान होता है। ये तुम्हारा पूरा फोकस नहीं, इसलिए ऑन द आउटसाइड बोले। हम ऑन द आउटसाइड एक बार नहीं बोलेंगे, हम हमेशा बोल रहे होंगे
ऑन द आउटसाइड, ऑन द इनसाइड, ऑन द आउटसाइड, लेकिन तुम उतना ध्यान नहीं दे रहे हो कि हम डी बोल रहे हैं, क्योंकि तुमको टीएचई पे ओवर कॉन्फिडेंस है कि हम जानते हैं उस वर्ड, ठीक है, इसलिए तुम द बोलती है, लेकिन हम बोले थे हिंदी थोड़ा सा, है ना। तो पूरा फोकस लेके आओगे इस क्लास में, ज्यादा फायदा होगा। कभी मत सोचो कि हम जानते हैं कोई भी चीज, पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, फायदा होगा। क्यों फेल किए? ऑन वर्ड नहीं सुने हो कि ऑन बोलने में मुंह टेढ़ा होता है इसलिए नहीं बोल पा रहे? द नहीं सुने हो कि द बोलने में मुंह टेढ़ा होता है इसलिए नहीं बोल पाए? आउटसाइड नहीं सुने थे? इसके दो ही जवाब है, सिर्फ दो ही जवाब। या तो ये चाहता नहीं है सीखने, या तो ये सीखने लायक, दो में से। और कोई तीसरा बीच का बात है क्या? क्योंकि हमने कोई ऐसे कॉम्प्लेक्स चीज नहीं बोली है। या तो ये सीखना नहीं चाहता, या तो ये सिंपल चीज भी सीखने लायक ही है नहीं है, दो में से एक। तुम बताओ, तुमको क्या लगता है? तीसरा कुछ नहीं, तीसरा है तो तुम अपने हिसाब से बताना, ये भी बात तो हो सकता है ना। हाँ बोलो। दो बार तीन बार बुलवाए थे ना, दो दो बार। पहले किस चीज के बारे में बात की? नारियल, पहले वाटरमेलन। वाटरमेलन्स आर ग्रीन ऑन द आउटसाइड एंड रेड ऑन द इनसाइड। फिर मैंने सोचा चला थोड़ा, जब एक फ्रेज आ ही गया मुंह पे तो थोड़ी प्रैक्टिस करवा देते हैं। देन आई थॉट ऑफ कोकोनट्स। मैंने हिंदी बोला नारियल बाहर से सख्त और अंदर से मुलायम होता है, तो कर दिया सब लोगों ने। वाटरमेलन्स आर, सॉरी, कोकोनट्स आर हार्ड ऑन द आउटसाइड, और सब लोग बोले थे ऑन द आउटसाइड, मैं सुना, ठीक है। फिर मैंने भी रिपीट किया, हाँ कोकोनट्स आर, ऐसा नहीं कि खाली तुम्हारे बोलने के बाद बुलवा दिया, नहीं, आई रिपीटेड इट। तो हो सकता है ढेर सारी आवाज ना समझ में आई हो, मैं बोल देता हूँ कोकोनट्स आर हार्ड ऑन द आउटसाइड एंड सॉफ्ट ऑन द इनसाइड। फिर तुम ये रिपीट क्यों नहीं कर पाए? ऑन द आउटसाइड, खाली इतना, पूरा सेंटेंस बोलने के लिए नहीं बोला गया था, बाहर से के लिए क्या बोल रहे तुम, क्यों नहीं रिपीट कर पाए? बात करो, बात करो। प्रॉमिस है, कोई थप्पड़ कोई गाली कुछ नहीं आ रहा तुम्हारे पास, कुछ नहीं, कोई पनिशमेंट नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं। बताओ, कोई एम्बैरेसमेंट वाली बात नहीं बोलेंगे, कोई तुमको एम्बैरेस नहीं कराएंगे। बताओ क्यों नहीं जवाब दे पाए? ये बहुत जरूरी है कि तुम इस चीज को एक्नॉलेज करो कि तुम्हारी प्रॉब्लम है क्या, ताकि तुम उस पर काम कर सको। इसलिए तुम्हें अपने मुंह से बोलना है कि इस वजह से ये नहीं हो पाया। हाँ बोल। ध्यान नहीं था मतलब? ये तो ध्यान नहीं था कैसे तुम बोल सकते हो? ध्यान नहीं दे रहे तो तुम बोल सकते हो। तुम बोल सकते हो हम ध्यान नहीं, ध्यान नहीं था कैसे बोलोगे? ध्यान नहीं था मतलब क्या होता है? ध्यान अपनी मर्जी से नहीं था कि हम नहीं रहेंगे यहाँ पे, क्या क्या कहना चाह रहे? ध्यान का चला कि तुम्हारा चला? हाँ, क्या चला तुम्हारा? कितना दूर बैठे हो हमसे? 1.5 फीट की दूरी पे। ध्यान नहीं था क्यों? या ध्यान नहीं दे रहे थे क्यों? बताओ क्यों? अरे बताओ ना क्यों। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ठीक है। जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आएगी तो उसमें रोल एक फैक्टर का नहीं होगा, बहुत सारे फैक्टर्स मिल के खराब होते हैं। जैसे छोटी मोटी बीमारी होती है तुरंत ठीक हो जाता है, हाँ कि ना। लेकिन जब कोई गंभीर बीमारी हो तो बहुत सारी चीजें इधर उधर हो गई होती है शरीर में। तो वैसे ही मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है बच्चों का पॉजिटिव। अपने स्कूल, अपने क्लास, अपने सहपाठी यानी क्लासमेट्स, अपने टीचर्स के तरफ पॉजिटिव होना हो। पॉजिटिविटी जो है ना, उनको सीखने के रास्ते पे लेके जाती है। लेकिन जो बच्चे क्लास में बैठ के अपने क्लासमेट्स, अपने टीचर्स, अपने स्कूल, अपने क्लास के लिए अगर नेगेटिव फीलिंग डेवलप कर लिए फॉर वट एवर रीजंस, ओके, फिर वो पॉजिटिव रास्ते पे जाए यानी सीखने वाले रास्ते पे जाए, ये और मुश्किल हो जाता है। ये पढ़ना है लोगों को, टीचर जो बनते हैं ना उनको पढ़ाया जाता है ये सब चीजें उनके कोर्स में। बीएड जो कहते हो वही साइकोलॉजिकल और इमोशनल कनेक्शन टीचर का और स्टूडेंट का क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर आप में से कोई यहाँ बैठ के सोचता है विनय खराब आदमी है, कोई भी यहाँ बैठा हुआ, उसका सीखना स्लो रहेगा, याद रखना। ये तो ब्लैकमेल कर रहे हो सर, आप कह रहे हो अच्छा सोचो मेरे बारे में।
नहीं, हम ब्लैकमेल नहीं कर रहे। हम आपको बता रहे कि अगर आपको किसी वजह से मेरी कोई बात अच्छी ना लगती हो तो मन से झिझक हटा दे उसको कि इससे हमको क्या लेना देना, मेरे सर हैं, हमको पढ़ने से मतलब है, ऐसे वाला सोच लाइए। इससे वो आपका सीखना आसान हो जाएगा। और मान लो आपको मेरी कोई बात अच्छी ना लगती हो, ठीक है, आई एम अ पर्सन, यू आर अ पर्सन, यू मे हैव अ डिसलाइक फॉर सम ऑफ माय, मान लो आपको मेरा चेहरा ही पसंद नहीं है, ठीक है, अब आप पैर के इतना गंदा लगता है ये आदमी देखने में, कैसे देखे, तो आप सीखने में स्लो हो जाएंगे। आपका ऐसा भी लगता है यार बात कर रहे हैं उसको ध्यान देते हैं, तो इससे आप सीख पाएंगे ज्यादा। मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको, ठीक है, बड़े हो गए हैं चाहे आप छोटे हो, छोटे बच्चों के साथ आप देखिए, मेरे क्लास में छोटे बच्चों की क्लास में मुझे इस बात का एहसास है, देर ऑल वेरी फ्रेंडली विद मी, पर मुझे पता है उनको अगर नहीं खुश रखूंगा तो वो पॉजिटिव रास्ते पे नहीं जाएंगे, सीखने वाले रास्ते पे नहीं जाएंगे। इफ आई मेक देम अनहैप्पी विद मी देन दे विल नॉट लर्न फास्ट। So the students, younger students, class 1, class 2, class 3, class 4, they're all very happy with me. Majority, I will say most of them are, almost all of them are very happy. And because they're happy, they pay attention. They learn fast. They feel proud that they are in the class. अगर ये चीज मिस हो जाए ना किसी बच्चे के दिमाग में, और होती है, जैसे जैसे बड़े क्लास में जाएंगे ना ज्यादा होगा, मैं बताता हूँ। क्लास 1 में जो बच्चा है, इज जस्ट 5-6 years old, तो उसके साथ मेरे दिमाग में ये आता है कि इसको गलत बना दिया है किसी ने, उसको सही करता हूँ। लेकिन जब आप 15-16 साल के हो जाते हैं, 12 साल के हो जाते हैं, 13 साल के हो जाते हैं, और आप कभी कभी डांट सुनते हैं, तो आपका नेचर दूसरे तरह से काम करता है। बहुत सारी ये आदत है। जितना बड़े लोगों को डांट नेगेटिव लगता है, बच्चों को कभी नहीं लगता। बच्चे मार खा के फिर मम्मी से चिपक जाए, राइट, टीचर मारेंगे, उसका आधे घंटे बाद टीचर से एकदम हाँ 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 कंफर्टेबल, ठीक है, उनको लगता ही नहीं बुरा। बुरा क्यों लगेगा? ईगो अभी डेवलप नहीं हुआ है ना। ईगो डेवलप हो जाता है, बुरा लगता है, अब वहां से रास्ता अलग हो जाता है, वो टू इंडिविजुअल्स हो जाते हैं, तो इसलिए मुश्किल हो जाती है। इसलिए कहा जाता है शुरुआत वही मायने रखता है। आरव को ही मैंने क्रिटिसाइज किया, डांट लगाई है कभी कभी, ठीक है, बुरा लगा होगा बच्चे को, बट इवेंचुअली वो वापस आ गया। उसको भी डांट लगाई है, सब आ जाते हैं। तुम सोचो कि क्या चल रहा है तुम्हारे साथ, क्या हो रहा है, सोचो, बहुत जरूरी है। क्यों हो रहा है तुम्हारे साथ ऐसा? यहीं बगल में बैठा बच्चा, 1.5 फीट बगल में, 4 बार सुनने के बाद वो चीज, क्यों नहीं कर पाया? बिल्कुल। Okay, children. Yeah, you can take it. तो इस बात का ख्याल रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट था that I highlight this, that this guy is not learning, it is very important. I believe that in my class everybody will learn. प्रिंस जब आया था, इसकी इंग्लिश इतनी नर्वस, खुद था अपनी इंग्लिश, कमजोर इंग्लिश की वजह से, बट द ओनली गुड थिंग अबाउट हिम, दिस गाय, इज he believed in himself, he believed in the process, he's improving slowly. अपना तुम ही रहोगे, तुम्हारे ही रफ्तार से बढ़ोगे। तुम मेरे रफ्तार से कैसे बढ़ सकते हो? यू डोंट हैव माई ब्रेन, you don't have Samir's brain, you don't have Vishal's brain, you have your brain. So you will definitely move forward at your own speed. Nobody can change that, but you will move forward if you want to, if you make an effort. Sitting here on the outside, on the inside, कितना clear था, watermelons are green, और बाकी बचा क्या था? On the outside, but they are red.
ऑन द इनसाइड। हाँ होता है, 10 मिनट बाद आप ऑन छूट जाएगा, द इनसाइड रह जाएगा, इनसाइड आउटसाइड रह जाएगा, क्योंकि वो मेन वर्ड है। छोटे छोटे वर्ड्स ड्रॉप हो जाते हैं। आप शादी में दूल्हा ड्रॉप होते हुए देखे हैं? दूल्हा घर पे भूल गया, नहीं ना, नहीं ना, लेकिन छूट जाता है पान का पत्ता, छूट जाता है वो फलाना छोटे सी चीज। तो स्मॉल थिंग्स आर इजी टू फॉरगेट। तो आप भूल सकते हैं ऑन वर्ड, द छूट सकता है, अनसाइड और इनसाइड नहीं छूटेगा। तो बी अलर्ट अबाउट वेयर यू कैन फॉल्टर, कहाँ गलती हो सकती है, उस बात पे ध्यान दीजिए, यू विल लर्न बेटर। तो अभी से घर जाएंगे ग्रुप में सब लोग। और एक चीज और, आई एम वेरी अनहैप्पी अबाउट अ फ्यू थिंग्स। आप लोगों ने ग्रुप को एकदम बेइज्जत कर दिया, नॉट अ सिंगल मैसेज। अभी बच्चों के पास तो मोबाइल नहीं रहता, दे कांट पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन, बट यू ग्रोन अप पीपल, no conversation, no discussion, no practice, nothing. Why do we have the group? So today is homework. आज जाके जो भी सेंटेंस जनरल बातें आए दिमाग में वो लिखिए। जैसे आप लिख सकते हैं कि दूध हड्डियां मजबूत बनाता है, आप लिख सकते हैं मिल्क मेक्स योर बोन्स स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक है। तो मिल्क यहाँ लिखना है, मिल्क से क्योंकि मिल्क अनकाउंटेबल है। लेकिन यही चीज अगर आप बादाम के बारे में लिखना चाहते हैं, बादाम आपके याददाश्त को स्ट्रांग बनाता है, तो आप आमंड नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? आमंड्स, क्योंकि आपको पता है ना, आमंड 1 आमंड 2 आमंड 3 आमंड्स काउंट कर सकते हो आप उनको। तो आप लिखो आमंड्स मेक योर मेमोरी स्ट्रॉन्गर। तो आप ऐसे कंपेयर करें कि जो आप नाउन यूज कर रहे हैं वो काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल। फिर से वही बात, जिसको ये क्लास में नहीं बैठाया गया उससे ये सवाल पूछेगा कि दूध से हड्डियां मजबूत होती हैं, बादाम से याददाश्त मजबूत होती है। सिमिलर सेंटेंस है ना, उसको लगेगा सेम होगा, लेकिन इंग्लिश में ये फर्क है काउंटेबल और अनकाउंटेबल की वजह से। So I hope you guys know what you have to practice. And you must practice tonight between 7 and 9 so that I can also maybe once, contribute a little bit. अगर आप कुछ कर रहे हो तो हम भी उस पर समय दे सके। 7 to 9 or 9:30 or 10 o'clock or 10:30. लेकिन after 7 o'clock, start your practice. Okay, in the group. Thank you, everybody. My online students, मैं चाहता हूँ आपके participation ग्रुप में प्रैक्टिस के दौरान। एवरीबॉडी विल राइट देयर सेंटेंसेस, ओके। और पूरे इंटरेस्ट लेके प्रैक्टिस करिए। आप बताएं मेरे बच्चा, आप अपने पापा के नाम से यहाँ पर आए हुए हैं निहारिका, तो आप मुझे बताएं बेटा, आपने पढ़ाई समझा आज? नहीं समझा तो मैं रिकॉर्डिंग शेयर करता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है? कोशिश करूंगा 8 बजे तक शेयर कर दूं, देख लेना, ओके? Okay, sir. मुझे मैसेज करना बेटा किसी को बात करनी हो तो, ओके? बाय बाय, टेक केयर। Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. बाय।